In this video, we will understand the topic enzymes, and I have divided this topic into two subtopics according to our syllabus. One is enzyme action and the other subtopic is effect of temperature and pH on enzyme activity. इस वीडियो में हम enzyme action को ही completely understand करेंगे according to syllabus point and topical. So the first question that comes into our mind is what are enzymes? इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले एक और चीज को अंडरस्टैंड करना होगा और वो है what are catalysts? So catalysts are those chemical that speed up a rate of a reaction. अब क्वेश्चन यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन आता है कि ये किस तरह एक रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं. इसका आंसर है ये रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको कम कर देते हैं. अब अगेन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है. एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है. जैसे कि अगर आपने किसी चीज को जलाना है तो हमें एक स्पार्क चाहिए. So that spark is the activation energy for that burning reaction. अब मैं आपके साथ एक ग्राफ शेयर करता हूँ, एक रिएक्शन ग्राफ शेयर करता हूँ जिससे आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि कैटलिस्ट किस तरह जो है रिएक्शन को स्पीड अप करता है बाय मिनिमाइजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. सो दिस इज अ ग्राफ फॉर अ रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट. अब ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये जो आप एक इनके सामने एक जो है लार्ज हर्डल देख रहे हैं, this is basically the activation energy. So they have to cross this hurdle to become the reactant. लेकिन जब हम इसी रिएक्शन में हम कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम करता है जिससे रिएक्टेंट इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं और इन लेस टाइम वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में. सो बेसिकली ये जो कैटलिस्ट हैं इस तरह एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम करके रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं. The second thing regarding catalyst is that they remain unchanged at the end of a reaction. इसका मतलब ये है कि जब एक कैटलिस्ट रिएक्शन को कैटलाइज कर लेता है तो हमारे पास वो हम उसको दोबारा रिकवर कर लेते हैं. तो हम एक ही कैटलिस्ट को बार बार एक रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज कर सकते हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर enzymes. Enzymes are made from proteins. So this is the structure of an enzyme. They are made from proteins or amino acid. Enzymes are made by living organisms. Now, what is the connection between enzyme and catalyst? Enzymes are biological catalysts. It means that they are made by living organisms and they catalyzes all the reaction taking place inside living organism. Why enzymes are important in all living organisms? So this is a very important question. The answer to that question is that they catalyzes all the reaction that is taking place inside the cell, which is essential for proper functioning of cell. So if the cell is working properly, because our body is made up of cells, so our body or any other living organism, either unicellular or multicellular, their body function properly. So what are metabolic reactions? Metabolic reactions are those chemical reaction which is taking place inside all the chemical reaction taking place inside cell. We call them metabolic reaction, just like we can say respiration. Now I will share the exact definitions of catalyst and enzymes. So for the catalyst, a substance that increases the rate of a chemical reaction and is not changed by the reaction. So this is a complete definition of catalyst. And for enzymes, proteins that function as biological catalysts and are involved in all metabolic reaction. So these two are the exact definition of catalyst and enzyme, and examiner ask regarding the definition of catalyst and enzyme. So you can write this definition to get complete 2 marks. इन एग्जाम्स क्वेश्चन के बाद अब हम समझते हैं कि एंजाइम काम कैसे करता है. सो दिस इज एन एंजाइम और एंजाइम पर ये जो स्पेसिफिक रीजन है इसे हम एक्टिव साइट कहते हैं. ये वो रीजन है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ बाइंड करेगा. सो दिस इज एन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस या मॉलिक्यूल है जिसपे एंजाइम एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में. हम यहाँ पे इसको रिएक्टेंट भी कह सकते हैं लेकिन सबस्ट्रेट एक बेटर टर्म है फॉर दिस एंजाइम टॉपिक. So now enzyme and substrate bind with each other and they form an enzyme substrate complex. After forming enzyme substrate complex, the enzyme will convert the substrate into desired products and the enzymes remain unchanged so that we can use the enzyme again and again. आफ्टर एंजाइम एक्शन वी विल मूव टूवर्ड्स लॉक एंड की हाइपोथेसिस. और इस मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपके साथ लॉक एंड की एग्जांपल शेयर करता हूं. जिस तरह एक स्पेसिफिक की एक करेक्ट की ही एक स्पेसिफिक लॉ को अनलॉक कर सकती है,
इसी तरह एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो कि उस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके साथ करेक्टली बाइंड कर सकता है, एंजाइम उसी पे काम करेगा, उसी सबस्ट्रेट को, उसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट्स में. So we can say according to enzyme cell that shape of active site is complementary to substrate. It means that the shape of substrate molecule and active site, they are made for each other and they are very specific. So ultimately we can say that enzymes are specific. Now I will share some example of enzymes, just like the enzyme amylase, which will only act on the molecule of starch. Lipase will act on fats or oil. Sucrose on sucrase on sucrose. The enzyme sucrase will act on sucrose, and the protease will break down the protein. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग के इंजाइम किस तरह काम करता है और लोकेन की मॉडल क्या है, मैं आपके साथ एक क्वेश्चन पैटर्न शेयर करता हूँ. जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि सवाल नहीं होते लेकिन पैटर्न वही रिपीट करता है. तो जब भी आपके सामने सवाल आए कि इंजाइम किस तरह काम करता है, लोकेन की मॉडल क्या है, मैं आपको एक जनरल आंसर दे देता हूँ अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम. मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल पास पेपर क्वेश्चन शेयर करता हूँ और उनका एक ही जनरल आंसर आपको दूंगा अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम, जिसमें कीवर्ड्स भी हैं. आप इसी आंसर को बार बार इस तरह के क्वेश्चंस के लिए यूज कर सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट पास पेपर क्वेश्चन और आपने सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट को ही रीड करना है. एक्सप्लेन हाउ द शेप ऑफ अ सुक्रेज मॉलिक्यूल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन. ये हमारे पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ शेप फॉर द फंक्शन ऑफ एन एंजाइम. ये क्वेश्चन हमारे पास, ये पास पेपर क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स का है. मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन हाउ एंजाइम्स कैटलाइज केमिकल रिएक्शंस, और ये भी क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स का है. अब मैं आपके साथ एक जनरल आंसर शेयर करता हूँ. जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए, सो यू कैन राइट दिस आंसर बिकॉज दिस आंसर contain the right keywords according to the marking scheme. So the first point we need to write is the enzyme has an active site with a specific shape. The enzyme site is complementary to the substrate, so the substrate binds into it. ये मैंने आपको बोला था कि जब हमने एंजाइम एक्शन, जब हमने लोकेन की मॉडल को अंडरस्टैंड किया था, तो वहाँ पे मैंने आपको ये लाइन वहाँ पे भी दी थी कि एग्जाम में आपने ये लाइन लाजमी मेंशन करनी है. एंड द थर्ड पॉइंट इज एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, देन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. तो ये 3 पॉइंट्स हम मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर्स के आपके पास जो है एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन पूछा हुआ 2 नंबर का है, 3 नंबर का है या 4 नंबर का है. In the upcoming video, we will understand the second subtopic of enzyme, which is effect of temperature and pH on enzyme activity. We will complete the concept understanding according to the syllabus points.